You want to send your doubts, you can send your doubts also. No problem, Sanika. Sanikta, you can send your doubts also. ये भी किसी का डाउट है जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ. You know the meaning of factorial n and n. N is equal to 1 to 100. May I start? Look, first one, n is equal to 1 to 100, and look into this now. What you can do, if you will put 1, right, this is t1 term, t2 is, t3 is tau 3, t3, at 100, if you add the number, is it okay? Question second. X cube minus greatest integer x is equal to 3. Solve for x. Anyone from your side? This was not done. Not bad, Kevin. Could you explain this? क्या किया?
मैंने सो गलत लिख दिया, सॉरी। इसे गलत लिख दिया सर, मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। Done. On this, anyone? Cube root of 4, दो तीन आ रहे आंसर दिखाता। Look, so what I'm doing, एक छोटा सा आप लोगों के लिए अलग दो तीन सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूं। तो आई एम ट्राइंग द फर्स्ट वन। सो आई एम ड्राइंग द ग्राफ। ग्राफ में मैं दो ग्राफ ड्रॉ करूंगा। द फर्स्ट ग्राफ विल बी ऑफ x क्यूब। For greater than 0, it will go something like this, not like this. It will go something like this. For negative, it's going like this, right? And this I'm writing here, 3 plus greatest integer x, right? So when x is lying between 0 to 1, right? X is lying between 0 to 1, this value will be 0. So you are getting a line at 3. When it's lying between 1 to 2, this will be something like, and it's going something like this. So, and similarly for 0, when this is -1, -2, -3, and so on, right? In both way, it's going the negative and the positive one. So approximately we are getting the 2 से 3, 4 के बीच में this will intersect each other, right? So only one we are getting solution from this side, something like between 2 to 3, right? So x cube is equal to greatest integer x plus 3 is first. When I'm saying x is lying between, obviously approximately I'm going for 1 to 2. If I'm going between 1 to 2, we know that like the value of x cube is equal to 3 plus 1, 4, to x cube is equal to 4. So x is equal to 4 to the power 1 by 3. So, oh, okay. 4 to the power 1 by 3 is lying between 1 to 2. So one of the solution is working, right? इसके आगे के लिए, if you are not satisfied with this, so you can go for second one. When you are going x is equal to 2 to 3, so x cube is equal to what you are getting 5, and x is equal to 5 to the power 1 by 3, but this value is again lying between 1 to 2, right? So this must not be the answer. ये मेरे आंसर में नहीं आना चाहिए, right? एंड इसके बाद के केसेस के लिए तो ऑब्वियसली वी कैन सी, सो ये ग्राफ जो बन रहा होगा, अगर कुछ गड़बड़ है तो अपने आप मेरे को पता चल गया, सो वी कैन रेक्टिफाई दिस एंड वी कैन से कि ओके माय ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस, जो यहाँ पर 1 से 2 के बीच में कट कर रहा होगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू? x इज इक्वल टू 4 to the power 1 by 3. How many of you got this answer? Write down yes in chat.
Okay, good. Very good. So for greatest integer, you have to be careful, right? Factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 up to factorial x minus 1 is equal to k square. Solve for x when k belongs to integer I. Yes, from your side. Very good. Yes, Aman, please. So in the last question, why was the solution supposed to be between 1 and 2? It's coming, beta. The value of x is coming as 4 to the power 1 by 3. Right? Why did we reject 5 to the power 1 by 3? Because x was given 2 to 3, between 2 to 3. So 5 to the power 1 by 3 is the value between 2 to 3 or 1 by 3. 5 to the power 1 by 3 or 1 by 3. What you'll say? Yes, 5 sir. to the power 3 is lying between 2 to 3 or what? Okay. Yes, sir. This one. Who is explaining this? कितने लोगों का हो गया? कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा प्लीज? एनीवन? नहीं? कुछ हिंट दूं? ये खेल पूरा इंटीजर्स का है, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को इंटीजर्स ही दिखाई दे रहे हैं ना। तो लेफ्ट साइड में मेरे को इंटीजर दिखाई दे रहे हैं, तो राइट साइड में भी मेरे को कुछ इंटीजर्स का ही दोनों केस होने चाहिए, राइट। फैक्टोरियल्स की कुछ अपने आप में प्रॉपर्टी होती है, ऑब्वियसली यू नो दैट कि right, you know that this is given, right? Factorial 1 is 1, factorial 2 is 2, factorial 3 is 6, factorial 4 is 24, factorial 5 is 120 and so on. मैं इसके बाद पे बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? Look into this. 1 is 1 only, 2, this and sum. ये सम में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छुपी हुई है। क्या प्रॉपर्टी? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 6, दिस इज 24, right? So if I'll add these numbers, I'm getting 33. फैक्टोरियल 4 तक का सम जो है वो 33 आता है, right? एंड फैक्टोरियल 5 के बाद यूनिट प्लेस में हमेशा 0 आएगा। मतलब फैक्टोरियल 4 और ahead you'll get unit place as 3. Unit place is 3. Curve when you are saying it's going to 4 या 4 के आगे, right? Unit place will be 3. अब यूनिट प्लेस के 3 आने का क्या कहानी हो गया यार? ठीक है, यूनिट प्लेस 3 आने से एक बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी, बहुत मजेदार सी बात आ जाती। क्या है वो? राइट,
नंबर में एक अच्छा खेल चलता है। क्या खेल चलता है? 1 square ending with 1, 2 square ending with 4, 3 square ending with 9, 4 square ending with 6, 5 square ending with 5, 6 square ending with 6, 7 square ending with 9, 8 square 4, 9 square 1, 10 की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो हमेशा 1 ही रहता है। मतलब कोई भी नंबर मेरे पास ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसकी यूनिट प्लेस पर 3 आ जाए, राइट? मतलब साफ है, ये पूरी थ्योरी से मेरे पास ये आ गया कि नंबर मस्ट बी लेस देन 4। मतलब 1 2 3 यही 3 नंबर हैं जिनसे मेरे पास यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है। पहले तो यहाँ तक नोट कर लो, और आंसर भी आप ही लोग दो तो और अच्छा लगेगा। क्यों मेरे को इन्वॉल्व करोगे? दो सॉल्यूशन होंगे। डन। 2 कैसे कर दिए? 2 + 1 3 आ गया, फिर तो 3 आएगा स्निग्धा। y(x = 2) सर बिकॉज x-1 तक दिया था तो मैंने इसलिए लिख दिया, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा मेरे पास? एक 2 आ गया और एक x की वैल्यू 4 आ गई। 4 - 1 पर वो 3 जाएगा, तो 6 + 2 8 + 1 9, राइट? x - 1 की वैल्यू या तो 3 जा सकती है या x - 1 की वैल्यू 1 जा सकती है। तो x - 1 = 3, तो x = 4, x - 1 = 1, तो x = 2। इज इट ओके? सर 0 भी तो हो सकता है। मेरे को जो चाहिए वो चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली जाएगा 1 and 3। इज इट ओके? ओके एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। These are simple, बट एक बार जानने की क्वेश्चन होते हैं, अदरवाइज ये सब में मतलब हाउ डू यू थिंक बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि कैसे वो वर्किंग होगी। लाइक द सेम थिंग विद दिस वन, √(x + twice of √(x + twice of √(x + ... twice of √(x +
twice of under root of 3x is equal to x. Find real roots of this equation. Anyone? Very good, Tanesh. How could you solve this? सर ट्रायल एंड एरर से किया x इक्वल टू 3 पुट किया तो रूट 9 जो थी एक और सॉल्यूशन फिर ट्रायल एंड एरर से तेरे को निकल जाना चाहिए था। अगर 3 आ रहा है ना तो एक और सॉल्यूशन तेरे को निकल के आ जाना चाहिए था। सोचो एक बार, ट्रायल एंड एरर से ही ध्यान से देखो। Very good, Dhruv. Could you explain this? Could you explain this? Yes, sir. Sir, the same trial and error. So, sir, I first put, I already knew the answer 3, so I put 0. Okay. So, I got Or that. not bad. Answer is 0 and 3. Very good. I agree with this. But how do you know ki, like, only 2 values are there, not more than 2? Maybe more than 2 values will satisfy. Right? So Sir, we can square both sides. टेक योर टाइम, 2 से 3 मिनट आप लोग लें, एक बार ट्राई करें, फिर मेरे को बताएं क्या करना चाह रहे हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको दिखाई देनी चाहिए एग्जैक्ट जो दिखना है। टेक योर टाइम। देवांश, want to explain? सर इस पूरे को हम लोग रूट इसको हमने x कंसीडर कर लिया ना, तो हम लोग वो उसे लिखेंगे रूट ऑफ x प्लस 2x। x क्यों कर लेंगे? why this is not x, वो तो अंडर, अगर लास्ट में इट्स गिवन अंडर रूट ऑफ 3x, so how could you say कि this is x only? यस सर, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा। हाँ, इनफाइनाइट तक तो नहीं, अभी तो नहीं जा रहा है ये। सी x plus twice of under root of
x plus twice of under root of x प्लस ये जाते जा रहा है, लास्ट में था 2x प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 2x, ये है। इज इट ओके? मैं लास्ट में जो 3x है उसे x प्लस 2x लिख सकता हूँ, राइट? ध्यान देना, ये जो x है, राइट, एक मिनट, एक काम कर लेता हूँ, आसान पड़ेगा, नहीं तो इतना बड़ा लिखना इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। मैं बोल रहा हूँ ये जो x है इसके बारे में सोचते हैं थोड़ा। क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं अगर ये x है यहीं पे, राइट, तो इस x को मैं हटा दिया और इस x को फिर से जो यहाँ गिवन है ये पूरा का पूरा ये लिख डाला। ये आएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस फिर जो ये 3x आएगा उसके साथ वही करूंगा। ये करते 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 मैं बोल सकता हूँ ये इन्फिनाइट तक चला गया, दैट इज इक्वल टू x। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस सर। मीन्स मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो आगे के टर्म्स जा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज x ओनली। दिस इज अंडर रूट ऑफ x प्लस 3x is equal to x only. Now for x is positive, oh sorry, 2x. So 3x का under root is equal to x squaring, both side x is equal to x square. Very good, answer was correct. Just pattern watch करने की बात थी। Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes. राइट, एक और क्वेश्चन है जो डाउट में, वो भी देख लें। उसे थोड़ा सा मैं ब्रेक कर करके देखता हूँ, ऐसे देखने में थोड़ा दिक्कत होगा। सो साइन x इज इक्वल्स टू x अपॉन 5 के नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताने हैं। आदित्य सिंह, सर मुझे को लगा वो, सॉरी सर, दूसरा क्वेश्चन जो था मैं करता हूँ सर, इसका भी बता दूं।
काफी सारे आ गए आंसर। Okay, okay, okay. Let's try. Sine curve. Right? Approximately 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi. Right? This is 0, comma 1. This is 0, comma minus 1. Right? So the line that we are getting, this is of 1, right? This is of minus 1, right? 1 and minus 1 के लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, right? Now, look, अब दूसरा लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ y is equal to x by 5, right? So what is this x by 5? x by 5 का लाइन कैसा होगा वो भी देख लेते हैं, right? y is equal to x by 5. This is 3.3 pi by 2, right? इसके आगे कहीं यहाँ पर 5 हो रहा होगा, right? Exactly at 5. Yeah? And the same way I'm getting there यहाँ पे, तो when x must be passing through both the extreme and going something like this. Something like this. At x is equal to 5, this will. So how many times both are intersecting? 1, 2, 3. So between minus 5, like 5, this will be 3 only, right? Now you all are going for the same question for x upon 10. Draw the graph or think on this. Very good, Patyus. Sanya, very good. Kevin, very good. Uday, very good. Aditya Singh. Done.
कैलकुलेशन ध्यान से। Draw the graph. Ten, right? Zero, pi, 2 pi, 3 pi, minus pi, minus 2 pi, minus 3 pi. जस्ट 3 पाई के बाद में जो वैल्यू आएगी दैट इज 10। इसी को बोलते हैं पाई पाई का हिसाब लेना। In that value, our graph will cross the line 1. It has to go something like this, right? So how many times they will intersect? 1, 2, 3, 4, 5. Right? Very simple. Right? And what we required in this case, माइनस, ये माइनस के लिए मैंने किया। अगर इसी को मेरे को प्लस का करना है तो व्हाट विल डू, ये वाली लाइन जो इस तरफ है ये टर्न होके आ जाएगी यहाँ पे, ये टर्न होके आ जाएगी यहाँ पे। समझते हैं? मतलब ये चला गया यहाँ पर कहीं 1, ये चला गया कहीं यहाँ पे। कितनी बार कट किया आप देखें। माइनस के लिए वो रहा, प्लस के लिए क्या रहेगा मैं देखते हैं। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7। अगर माइनस या प्लस जो भी गिवन है विल गेट द आंसर। प्लस के लिए है, राइट? इस केस में मैंने आपसे प्लस के लिए पूछा है तो आंसर विल बी 7 जैसे, राइट? और अगर आपने माइनस के लिए मैंने पूछा होता तो वही आंसर मेरा 5 में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास what, Aditya, what you are asking? Sir, will that intersection point which is there in the center be common to both the cases? हाँ, जीरो पर ही है वो तो ना बेटा। हाँ x sir. तो sin 0 will be 0 ना। Yes sir. How many of you got 7 solution? Write down yes. वेरी गुड। अब ये ग्राफ को देख के आप ये सोचो कि साइन एक्स, ये एक सिंबॉलिक ग्राफ है अब आपके पास। नाउ यू हैव टू थिंक साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100 के कितने सॉल्यूशंस होंगे। यू हैव 3 मिनट टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
यानी ये 3 सॉल्यूशन किसके लिए लिखा? हाँ, सबके अलग अलग आ गए यार, कैसी काउंटिंग है ये? लुक, हुआ क्या होगा इसे समझते हैं। 100 मतलब कितना पाई हो गया, करीब करीब ये देख लें हम लोग, राइट। 100 मतलब कितना पाई आएगा करीब करीब, तो 31 इंटू पाई के ऊपर जा रहा होगा 100, राइट। मतलब जैसे यहाँ पर खत्म हुआ है तो दिस विल बी 30 पाई एंड यहाँ पर आया होगा 31 पाई, इसके बाद कहीं यहाँ पर 1 जा रहा होगा। ये समझ में आ रही होगी। मैं यहाँ पर जहाँ वर्किंग कर रहा है मैं कुछ और हाईलाइट करूँ, मैं बोल रहा हूँ यही गया होगा, ये नंबर गया होगा 30 पाई। सोचो वहाँ पर जहाँ पर ये वर्क हो रहा होगा ये 30 पाई हो रहा होगा, ये 31 पाई हो रहा होगा, और 31 पाई के बाद ये जो लाइन है यहाँ पर ये 1 जा रहा होगा, राइट। सो 30 पाई, राइट। अगर ध्यान से इस तरफ मैं देखूं तो 0 को छोड़ दिया जाए, राइट। अगर यहाँ पर भी मैं देखूं तो 2 बार कट किया, यहाँ पर भी 2 बार कट किया, राइट। इसी तरह से ये बढ़ता जा रहा है 3 पाई से 4 पाई, राइट। तो 0 से 2 पाई में मेरे को 2 बार मिला, 2 पाई से 4 पाई में भी 2 बार मिला। तो ये सोचो कि 30 पाई तक में मेरे को कितना मिल गया होगा। 0 से 2 पाई जो यहाँ तक है इसमें मुझे मिला 2 इंटरसेक्शन। 2 पाई से 4 पाई में फिर मिला 2 इंटरसेक्शन। 4 पाई से 6 पाई में फिर मिला होगा 2 इंटरसेक्शन। हर एक में 2 2 2 2 2 इसी तरह से आ रहे होंगे। तो 0 को भी मैं इंक्लूड करते हुए यहाँ पर रखूँ, 0 वाले को भी, तो मैं बोल रहा हूँ हर एक इंटरवल में 2 मिल रहा है, हर एक इंटरवल में 2 मिल रहा है मेरे को। तो 0 से 2 पाई में, 2 पाई से 4 पाई में, 4 पाई से 6 पाई में, करते करते 28 पाई से 30 पाई में कितना मिल गया, राइट। तो हर एक में 2 2 2, तो राइट 14 तो यहाँ पर ये अपने पास आ गया। तो 14 इंटू 2 28, तो ये हो गया, प्लस 30 से 31 में 2 और मिल गया, तो ये हो गया 30 पाई ना। 30 सॉल्यूशन तो मेरे राइट साइड में हो गए इंक्लूडिंग दिस ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर मैं 33 पाई तक जा रहा हूँ, तो नीचे वाला ग्राफ बना होगा, तो हर एक में फिर से मेरे पास 2 सॉल्यूशन आ गया, फिर से 2 सॉल्यूशन आ गया, हर एक में 2 2 सॉल्यूशन आ रहा है, राइट। लेकिन इसमें 0 से पाई में, पाई से 3 पाई में 2 2 2 सॉल्यूशन मेरे पास चले जा रहे हैं। तो एक यहाँ से इसे -1 तो पहले मैंने कर दिया, और हर एक में 2 2 2 2 सॉल्यूशन मेरे पास है। तो टोटल मेरे पास कितने चले गए, 33 सॉल्यूशन। ये 33 हो गए, और ये हो गया मेरा 3। मेरे ख्याल से कुछ 63 आपके पास सॉल्यूशन आए होंगे, राइट। थोड़ा सा ग्राफ को अच्छे से बनाने की कोशिश रखें, ओके। नाउ नेक्स्ट इज
एक और डाउट आया हुआ है मेरे पास, वो भी देख लें। लास्ट क्लास में शायद मैंने ये डिस्कस किया था, मेरे को जैसा याद आ रहा है, फिर भी ये लॉग वाला कुछ एक मिसिंग लग रहा है। मैं एक बार देख के बताऊंगा कि एग्जैक्टली व्हाट दिस 1 minus x plus x minus 1 by 1 into 2 plus x minus 1 x minus 2 by 1 into 2 into 3, ये माइनस ये प्लस, ऐसे चलते चलते आखिरी में गया है ये -1 to the power n x minus 1 करके x minus n plus 1 upon factorial n is equal to 0। सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट? एनीवन, कोई कुछ इनलाइटमेंट दे कहानी में? आदित्य सिंह। हाँ सर। सर फैक्टर्स डाल सकते हम लोग x के। वेरी गुड। तो फॉर x माइनस 1 x का फैक्टर 1 डाल दिया तो एक फैक्टर x माइनस 1 आ गया। x इज इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे भी 0 होगा। और सर करते करते x माइनस 1 x माइनस 2 लेकर x माइनस n तक आ जाएगा सर आंसर। तो क्या आ जाएगा आंसर? सर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू लेते लेते x माइनस n तक, x माइनस n तक। n तक n माइनस 1 तक क्यों नहीं लिया? यहाँ कितने टर्म, यहाँ से लेके यहाँ तक में? ओ हाँ सर, x माइनस n प्लस 1 तक होगा सर। सोच लो, नहीं तो फिर मैं बोलूँगा सिंह। सर एक। वेरी गुड आदित्य, बहुत अच्छा बेटा। देखो x इजिकल टू 1 रखने पर ये 0 आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा। x इजिकल टू 2 पर भी 0 आ रहा है, x इजिकल टू 3 पर 0 आ रहा है। x माइनस 0 से स्टार्ट हुआ है एंड लास्ट टर्म इज x माइनस n माइनस 1। 0 से n माइनस 1 का होता है n टर्म्स, तो x माइनस n पर भी 0 आ रहा है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे को एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसका कोफिशिएंट क्या है ये नहीं पता। फैक्टर्स निकलने में एक सबसे बड़ा कहानी ये रहता है कि उसका कोफिशिएंट हमें नहीं पता होता, तो मैंने उसको नाम दे दिया लैम्डा। ओके, अब वो लैम्डा निकालना है। लैम्डा निकालने के लिए मैंने x को 0 पुट कर दिया। जैसे 0 पुट किया, ये 0 0 0 0 0 आ गया और इस तरफ आ गया 1 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 टू द पावर n फैक्टोरियल n, राइट? तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1 टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि -1 नीचे ही था, -1 टू द पावर n से मल्टीप्लाई किया, इसलिए वो ऊपर आ गया है। ये परट्यूस क्या यार घूमते रहता है, आते जाते रहता है? सर नेटवर्क चला गया। तीसरी बार? सर बार बार जाता रहता, मैं क्या ही करूँ अभी। नेटवर्क चेंज कराना। हो गया एक बार करके। सर लैपटॉप का प्रॉब्लम है एक्चुअली, नेटवर्क। अब लैपटॉप आ गया, देख तो पहले श्योर हो जा क्या चीज का है। लैपटॉप का सर हैंग हो जाता है, फिर नेटवर्क चले जाता है। हैं? हाँ सर। अच्छा, लैपटॉप का प्रॉब्लम है, हैंग हो जाता है जिसके कारण नेटवर्क चले जाता है, फिर लाइट चली जाती है जिसके कारण ट्रांसफार्मर फेल हो जाता है। सर पुराना लैपटॉप है। अरे नया ले वाले। हाँ, लैम्डा की वैल्यू ये आ गई, राइट? तो लैम्डा यहाँ मैंने रख दिया, तो मेरे पास आया दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n x minus 1 x minus 2 up to x minus n। Is it okay? हाँ, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये फैक्टर थ्योरम का एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। फैक्टर थ्योरम का क्या प्यारा सा क्वेश्चन है? अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो ये 1 पर तो 1 का फैक्टर है, 1 का फैक्टर तो 1 पे तो सब 0 हो गए, और ये 1 माइनस 1 भी 0 हो गया। तो मैं बोला वाओ, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। 2 मैंने रखा तो ध्यान देना क्या आ रहा है, 1 माइनस 2 इज -1। 2 पर ये आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 विल बी 0, ये भी गया। 3 मैंने रखा तो ये तो 3 तक से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस 1 2 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। मतलब हर एक n रखा तो n में भी ये पूरे के पूरे 0 हो जाएंगे कैंसिल होकर।
राइट, थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो और भी समझ में आ जाएगा कि n पर 0 होना या इस तरह से 0 होने का मतलब होता है ये बाइनोमियल का फॉर्मूला लग जाता है। बट यहाँ से हमने देख के ये बता दिया कि फैक्टर थ्योरम से ये निकलता जा रहा है। तो ये निकलते निकलते हमने देखा कि हर एक फैक्टर तो है, लेकिन फैक्टर के साथ में कोफिशिएंट क्या होगा ये मेरा नहीं था कुछ कहानी। तो वो कहानी के लिए हमने इसे लैम्डा दे दिया। लैम्डा देने पर हमने 0 पुट कर गया, तो आई एम गेटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इज दिस, और वहां से मेरे पास ये आ गया आंसर। ओके, किसी का डाउट छूट गया हो तो प्लीज सेंड मी अगेन। यस, LHS में 1 कहाँ से आया सर? एचएस में क्या चीज 0 पुट करने सर पे? नीचे सर, नीचे नीचे। तो पुट करने पे आया ना क्वेश्चन पे, एक्स 0 हाँ पुट सर। ऊपर। क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूँ? यस सर। किसी का क्वेश्चन छूट गया हो तो प्लीज सेंड मी अगेन। आप लोगों के जितने क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर ले लिए। लॉग वाला मैंने बोला है कि थोड़ा सा कुछ करेक्शन उसमें लग रहा है, मेरे को देखना पड़ेगा। वो एक टर्म छूटा हुआ है, लॉग के अंदर क्या है वो दिख ही नहीं रहा है। सेंड इट फास्ट। ओके, डन। देख लो ये आराम से। ओके, डन। टेक योर टाइम। सभी के डाउट हो गए ना? क्यों बच्चों को रुवा रहे हो यार, ये क्या है? अधिक मत सोचना, थोड़ा थोड़ा सोचना।
Kevin, very good. कई तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, आप जैसे भी चाहें। मैं स्टार्ट करूं? सर बस 1 मिनट सर। सुनीता, वेरी गुड। स्टार्ट। देखो, कई तरीके हो सकते हैं, राइट। फर्स्ट मेथड जो मेरे ख्याल से होना चाहिए, जिस तरीके से थॉटफुलनेस के साथ, दिस यू कैन राइट n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n इंटू फैक्टोरियल n का समेशन, और वी कैन राइट दिस एज n plus 1 the whole square into factorial n minus n into factorial n, right? Or we can write this as this n plus 1 into n plus 1 into factorial n is n plus 1. This is called telescopic. ये एक टेलीस्कोपिक हो गया। कैसे? अगर अब n को मैं 2 रखूंगा तो 2 इंटू फैक्टोरियल 2 t1 टर्म, 1 इंटू फैक्टोरियल 1, 2 रखा तो 3 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 रखा तो 4 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस
3 इंटू फैक्टोरियल 3 करते 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 मैंने 200 रखा, तो 201 इंटू 201 फैक्टोरियल माइनस 200 इंटू 200 फैक्टोरियल। सबको ऐड करना था, ऐड कर देता हूँ ना। तो कुछ टर्म अपने आप में कैंसिल होते जा रहे हैं, जो कैंसिल होते जाएंगे वो अच्छा होता जाएगा। एंड आखिरी में आपको आंसर जो बचा s इज इक्वल टू 201 इंटू 201 फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। वेरी गुड, दिस इज द फर्स्ट मेथड। इफ इट्स ओके देन ओके, नहीं तो मैं कुछ और बताऊं और कुछ ट्राई करूं। नोट डाउन प्लीज। ओके डन। अब ये है कि सर मतलब ऐसा लग रहा है ये तो आपको मालूम हो गया, हमें कैसे मालूम, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग कि n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, मान लो यही रहता एंड इसे सॉल्व करना, तो गो विद द बेसिक्स। बेसिक्स क्या कि नेचुरली यहाँ पर n स्क्वायर राइट प्लस n मैंने कर दिया, फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n कर दिया। प्लस प्लस में है, कैंसिल नहीं होगा ये मुझे मालूम है, बट फिर भी आगे तो बढ़ना ही है तो बढ़ता हूँ। यहाँ से अगर मैं n कॉमन ले लूँ तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल विल बी n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल। अब जितने फैक्टोरियल आगे बढ़ते जाएंगे उतना मेरे को अच्छा काम बनता जाएगा। मतलब ये n है और यहाँ पर n प्लस 1 है, तो ये n प्लस 2 करने के लिए मुझे n प्लस 2 रखना पड़ेगा, तो उसमें n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, ऐसा लिखा जा सकता है। मैंने प्लस 2 किया एंड माइनस 2 किया। इज इट ओके? फिर इसी को मैं लिखने का तरीका रखा, इन दोनों को एक बना के n प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू, जिसमें से एक मैंने n प्लस 1 फैक्टोरियल को इसको दे दिया, माइनस बीच में किया n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ध्यान से देखो तो ये भी टेलीस्कोपिक बन चुका। कैसे? ये टर्म और ये टर्म अगर मैं फिर से t1 रखा तो क्या जाएगा, 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1, मैंने 2 रखा क्या जाएगा, 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2, राइट? 3 रखा, 5 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 3, करते करते मैंने n रखा, सो n प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस n का फैक्टोरियल, पूरे को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने पर ठाक 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 सब कैंसिल हो गए, फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा n प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसे अगर ध्यान से रखूं तो इसे n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। n प्लस 1 का फैक्टोरियल बाहर लिया, बचा हुआ जो टर्म है वो n प्लस 1 आया और यहाँ पर 1 इंटू फैक्टोरियल 1 आया, मतलब n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। जो आंसर पहले था वही आंसर यहाँ पर भी। दिस इज द सेकेंड वन। Note down, please.
सर आपने फोर्थ स्टेप में क्या किया? हाँ सर, आपने माइनस में कैसे खेला वो समझ में नहीं आया। n में +2 कर दिया और -2 कर दिया, उसे फिर ओपन कर लिया और फैक्टोरियल n जैसे था उसको रहने दिया। n इंटू n+1 का फैक्टोरियल था तो मैंने n+2 कर दिया, -2 कर दिया, दोनों को अलग अलग ओपन कर लिया। ओके सर। और तरीका बताओ या ठीक है? तो बता दो। नोट डाउन प्लीज। ओके देखो, अगर अब फैक्टोरियल है, मेरे को नेचुरली जो चीज़ें हो सकती है उस पर काम करूं। नेचुरल क्या है फैक्टोरियल का? फैक्टोरियल का नेचुरल ये होता है कि n² + n+1 इंटू फैक्टोरियल n है ना। नेचुरल ये होता है कि n² है और यहाँ फैक्टोरियल n है तो मल्टीप्लाई होकर n+2 फैक्टोरियल तक जा सकता है, क्योंकि n² है तो एक n+1 एक बार आएगा, दूसरी बार n+2 आएगा, तो नेचुरली वो जा सकता है n+2 तक। कब जाएगा? फैक्टोरियल n से जब n+1 का टर्म और n+2 का टर्म मल्टीप्लाई होगा तब ये पूरा का पूरा टर्म n+2 का फैक्टोरियल बनेगा। राइट, ये क्लियर है? अब ये जो मेरे पास है, ये मैंने कहा कि मैं फोर्स करता हूँ इसे। फोर्स करने का मतलब n² + 3n+2, इतना मैं फोर्स करता हूँ, तो इसे मैं जानबूझ के लिख दिया, रेड से लिखूंगा, इसे मैं जानबूझ के लिखूंगा n² + 3n+2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस जो उधारी लिया था चुकता कर देता हूँ। क्या उधारी लिया मैंने? 3n हुआ मतलब 2n हो गया, एंड 1 मतलब +1 हो गया इंटू फैक्टोरियल n। राइट, अब ये गया मेरा n+1 n+2, इनफैक्ट n+2 n+1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस, यहाँ भी यही वर्क करता हूँ, n है यहाँ n+1 है। राइट, तो n+1 ट्वाइस ऑफ, राइट, अपनी तरफ से लिखा, माइनस मैंने किया 2 को तो +1 करना पड़ेगा। काम बन गया, ये आ गया n+2 का फैक्टोरियल -2 इंटू n+1 का फैक्टोरियल प्लस n का फैक्टोरियल। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये वही सीरीज थी आपके आप में टेलीस्कोपिक बनने को तैयार है। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो इसे, बहुत अधिक बड़ा ना सोचते हुए, n+2 का फैक्टोरियल माइनस n+1 का फैक्टोरियल, ये एक टर्म, और दूसरा n+1 का फैक्टोरियल माइनस n का फैक्टोरियल, ये एक सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकता हूँ। इज इट ओके? ये देख लो आराम से। एक प्लानिंग होता है, वो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी क्वेश्चन को मुझे करना, अच्छा क्वेश्चन है तो उसके लिए प्लानिंग होता है। वो प्लानिंग कहीं ना कहीं आपको हर बार निकालना पड़ेगा कि ओके क्या हो रहा है ये पूरा कहानी। डन 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 डन। Yes, sir, done. नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का डे इज द फैक्टोरियल डे। समेशन n² + n-1 अपॉन n+2 का फैक्टोरियल, n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n। डू इट फास्ट।
देखो प्लानिंग करो कैसे इसको टेलीस्कोप करना है, कैसे कैंसिल होने हैं। नमन वेरी गुड, बहुत अच्छे। फैक्टोरियल के लिए देखो एक्सक्लेमेशन मार्क है। हाँ सर, वो ध्यान नहीं रहा। मैं स्टार्ट करूं? डन सर है? आ गया आंसर। सही है, लिख दो चैट में। सर एक्चुअली बट बहुत बड़ा आ रहा है इसीलिए लिख नहीं पा रही चैट में। कोई बात नहीं, वेट कर, 2 मिनट वेट करो ना, 2 मिनट के लिए सबको और टाइम देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
बेसिक्स से स्टार्ट कर सकते हो आप, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स. ये आगे कैसे सॉल्व होगा आदित्य, वो भी लिख लो. हाँ, कौन एक्सप्लेन कर रहा है? किसका किसका आ गया? कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? प्लीज एक्सप्लेन. कोई नहीं, मैं स्टार्ट कर लूं तब. आओ देखिए. तो अगर दिक्कत जा रही है, प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा कि गो विद द बेसिक्स. मतलब ये है n स्क्वायर प्लस n, राइट. अगर कैंसिल करने हैं ऑब्वियसली n प्लस 2 फैक्टोरियल से, वी नो दैट 3n प्लस 2, मैंने माइनस 2n ये करना पड़ेगा, राइट. हमने 2n प्लस किया था तो माइनस 2n कर दिया, प्लस 2 मैंने यहाँ पर किया तो माइनस 2 करना पड़ेगा, और एक प्लस था तो 3 कर दिया, अपॉन n प्लस 2 का फैक्टोरियल, एंड इसमें भी n प्लस 2 का फैक्टोरियल, राइट. सो वी कैन राइट दिस एज 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 2 n प्लस 2 कर लेता हूँ तो n प्लस 2 का फैक्टोरियल चला जाएगा. यहाँ पर माइनस 4 हुआ तो प्लस 1 बाई n प्लस 2 का फैक्टोरियल. मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं, एकदम बेसिक से चले जाओ अगर आपको दिक्कत हो रही है तो. 1 बाई फैक्टोरियल n कैंसिल हुआ, 2 बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाई n प्लस 2 का फैक्टोरियल. यहाँ तक मैं आपके लिए कर दिया हूँ, राइट. यहाँ से कुछ कर सकते हो क्या? ध्यान से देखो. और वो शायद -1/n+2 का फैक्टोरियल होगा. -4 था ना बेटा, तो +1 करेंगे ना. -3 था यहाँ पे. एक मिनट, ये यहाँ पे -3 था, ब्रैकेट में मैंने रहेगा. 2 इंटू 2 किया तो ये 4 हो गया होगा, तो -4 हुआ तो मैंने +1 कर दिया. हाँ सर, समझो. वेरी गुड स्निग्धा. यहाँ पर अब तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ ही गया होगा यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या बोलना चाह रहा हूँ. क्या 1 बाई n फैक्टोरियल माइनस 1 बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल, एक इसे सोच लो. एक में माइनस निकाला, 1 बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1 बाई n प्लस 2 का फैक्टोरियल, राइट. ये अलग समीशन कर लो, ये अलग कर लो, या साथ में भी जैसा चाहो. ओके एवरीवन.
Next question, please. ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया। टेक योर टाइम। सिंपल है, इसलिए मैं चाहूंगा आप लोग की तरफ से आना चाहिए सभी के पास। ये भी स्पेशल सीरीज होती है, क्या स्पेशल है इसमें बताऊंगा। पहले सर
वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड निकाल लो, फिर फर्स्ट निकालना। वेरी गुड एवरीवन। एक्स फ्रैक्शन तभी इन्फिनिटी जाएगा बेटा, नहीं तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा आंसर। फालतू क्वेश्चन नहीं प्लीज। वेरी गुड। नमन, प्रत्युष, तनिष, शुभम, विनीत, अमन, वेरी गुड। आदित्य, वेरी गुड। Great, everyone. Manas, very good. Hardik, are you there? Retain. Answer, please. Yes, sir. Anya. Uday. Vasist. Vatsal. Are you there? Yes, Vasist, very good. आंसर लिख बेटा। मैंने वत्सल से पूछा था। आई गेस ही इज। आर यू देयर वत्सल? Write down the answer. ओके, वेरी गुड। लेट्स स्टार्ट। हाँ, काफ़ी सारे हैं, ये सिंपल क्वेश्चन को एक बार जल्दी से देख लो। इसमें बहुत सारे आते हैं, एपीजीपी ब्ला 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 ब्ला। आई गेस यू ऑल नो दिस आई कैन राइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी इज a अपॉन 1 माइनस आर। ओके, पहले तो ऑब्वियसली सेकंड वाला ही निकलेगा। एजीपी सीरीज है ये, इनफाइनाइट के लिए दिस विल वर्क। क्या वर्क करेगा ध्यान दो। मैंने क्या किया कि ये दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर विथ माइनस साइन एंड माइनस माइनस दोनों का x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आंसर आ गया। ये इन्फिनाइट के लिए बड़ा प्यारे तरीके से वर्क कर जाता है ना। अब जो गिवन है उसको मैंने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, राइट। दिस आई एम गेटिंग 2 1 into 2 2 into 3x plus 3 into 4x square up to infinity minus 2 upon 1 minus x का पावर 3 into minus 1. So 2 upon 1 minus x का पावर 3. नोट डाउन प्लीज। इसे फिर से डिफरेंशिएट किया, सर यस सर मैंने फर्स्ट वाला थोड़ा डिफरेंट मेथड से किया था सर। नहीं, नया बता दिया मैं तो। सर मैंने एक वो s को x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक टर्म शिफ्ट करके लिखा था। हाँ ठीक।
यस आदित्य। सर डिफरेंशिएट क्यों किया सर? मतलब वो समझ में टर्म्स लाने के लिए, बट और क्या? और कोई रीजन है क्या सर? मतलब सिर्फ टर्म्स लाना ही था इसलिए डिफरेंशिएट किया ना हम लोग ने, क्योंकि वो आ रहे थे। हाँ, वो टर्म आ रही थी। ओके सर। डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंशिएशन के तरीके से ही वर्क करता है, इसलिए हम लोग कर लेते हैं। तो थैंक यू सर। नेक्स्ट। सर वो मुझे समझ में नहीं आया, डिफरेंशिएट करने के बाद -1/1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर होगा तो प्लस कैसे? एक्स का भी डेरिवेटिव होगा तो माइनस एक्स है ना, तो उसका डेरिवेटिव एक और एक्स आ गया ना। क्या फॉर्मूला होता था? 1 माइनस एक्स टू द पावर -2 का डी बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, क्या होगा? -2 1 माइनस एक्स टू द पावर -2 -1 इंटू 1 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव इज -1। यही लिखा मैंने। यस सर, गॉट इट। ध्यान से। 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4, 1 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 अप टू n। ये 1, यहाँ पर ये 2 3 करते हुए n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n टू द पावर 4। इसे आपको बताना है बॉडी का आंसर।
डन। मैं करूं? सी क्या है, ध्यान से देखिए। ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ नंबर, बहुत प्यारा नंबर है एंड इसे याद रखना। शायद मैंने आपको पहले बताया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। दिस इज 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4, right? We know that we can factorize this number as 1 plus r square 1 minus r plus r square। ध्यान दो, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का फॉर्म रखा, राइट? 1 प्लस आर टू द पावर 4 प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही चीज आ जाएगा जो ऊपर है। ये फैक्टराइज हो गया ना, दो फैक्टर मैंने ले लिए। अब मैं न्यूमरेटर को लिखता हूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। दोनों को अलग अलग कर लें, राइट? 1 अपॉन 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, खुद से कोशिश करो, बहुत अधिक सॉल्यूशन तक आ गया है। ध्यान से देखो, जब तक नेटवर्क भी आ जाएगा। सर मिल गया मुझे सोल्यूशन। वेरी गुड। Something like this. Tanis, is it working? Very good. जितने भी क्वेश्चन आपने आज किए हैं, यू हैव टू बी केयरफुल। ये क्वेश्चंस आपको ध्यान से फिर से एक बार करने होंगे, राइट? देन ओनली यू विल गेट इनटू दिस, राइट? कुछ कुछ नए नए क्वेश्चंस हमेशा इस तरह के बनते जाएंगे, राइट? सो यू हैव टू बी नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग वहां तक जाएंगे। अभी अधिक नहीं, मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ना, ध्यान से। राइट डाउन एवरीवन।
राइट ये इसे फर्दर ये टेलीस्कोप हो गया 1 2 रख के देखो स्निग्धा 1 2 रख के देखो एक बार 1 रखो 2 रखो देखो फिर 1 जैसे मैं लगता है ना T1 T2 T3 रख के देखो देखो सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा ये 6 क्यों आ गया भाई 1 2 का 3 ठीक है ओके है सुनिता इज इट ओके Yes, sir. सो 2 का आंसर 1 है क्या? वाह गलत है ओके राइट ये 3 और जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं फिर से उन सब क्वेश्चन को करके देखें राइट दिमाग में बैठाएं किस तरह से क्रैक किया जाता है क्वेश्चन ओके Okay, sir. बाय बाय Bye, sir. Sir, Bye, thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.